A very good morning, class 11th. Continuing with chapter number 1, Evolution and Fundamentals of Business. Right. The topic we supposed to discuss today is commerce. Right. Have a look once again on the business activities. They are broadly classified into two main activities, industry and commerce. Beta, industry we are done with. Primary, secondary and tertiary. These are the three sectors of industry. Primary are of two types, extractive and genetic. Secondary, manufacturing. Tertiary, construction. Tertiary services in sector include banking, communication, transportation, warehousing. Okay, now comes commerce. So we are going to discuss commerce today. Commerce is again divided into two types, right? Two kind of activities are included in commerce. One is trade, another one is auxiliaries to trade. Auxiliary to trade are the activities which facilitates business, जो बिजनेस को में यूज़ की जाती हैं, बिजनेस को हेल्प करती हैं, जैसे हमारा बैंकिंग एज लाइक टर्शरी, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. तो कॉमर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेड. सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉमर्स. Commerce is the sum total of all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to consumer. See, here is the producer. Producer जो businessman है. Producer, when producer we are talking about the businessman who is the manufacturer of this pen, who is the manufacturer of TV, AC, fridge, of anything, right? वो हो गया business हमारा. That is business, जो आप पढ़ चुके हो business के बारे में. Okay. But now we are talking about commerce. So what is commerce? Commerce is the sum total of all those activities which are concerned with the transfer of goods and services. Producer ने ACs बनाए, producers manufacture TV. Okay, so these goods when transferred to the consumer, customer means, right? This is commerce. All those activities which are related with the transfer of these ACs and TV to the customer, to the consumer, this is commerce. Business क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AC एंड TV. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, तो कॉमर्स क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो AC और TV को कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, दैट इज़ कॉमर्स, राइट? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कस्टमर, दिस इज़ कॉमर्स. दिस इज़ कॉमर्स ब्रिजेज अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. कॉमर्स में हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. Okay, so it includes trade in goods and services and auxiliaries or aids to trade. Trade, what is trade? व्यापार क्या होता है? Buying and selling of good and services. मैंने AC बना दिया है, मैंने I manufactured TV, I manufactured AC, but how the AC and TV will reach to the customer? वो कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा? राइट वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. ज़्यादा सामान है तो आई कीप इट इन दी वेयर हाउस, राइट? स्टोर करके रखूँगी मैं इसको. बट द मेन थिंग इज़ ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? वो कैसे पहुंचेगा? ट्रेड से. एंड व्हाट ट्रेड इज़ ऑल अबाउट? इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज. AC लिया होलसेलर ने, एक पर्टिकुलर बंदा आ जाता है बीच में. इसमें आप ट्रेड के वो पार्ट्स पढ़ोगे इसको कैसे, जिसे कहते हैं होलसेलर या रिटेलर. होलसेलर और रिटेलर, दे बोथ आर डिफरेंट. रिटेलर, ठीक है. होलसेलर फैक्ट्री गया, प्रोड्यूसर के पास गया, उसने ACs लिए 500, TV लिए 500 और वो फिर लाकर रिटेलर को दिया. रिटेलर ने वो कस्टमर तक पहुंचाया. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कॉमर्स. ओके.
And when we are talking about auxiliaries to trade, the several services are required to facilitate purchase and sale of good. ऐसे ही थोड़ा ना पहुंच जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंक की हेल्प चाहिए, वेयरहाउस चाहिए, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, सामान जा रहा है और ख़राब हो गया, एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट होकर आएगा. ये सभी चीज़ें आती हैं. इन सभी चीज़ों को कहते हैं ऑक्सिलरीज और एड टू ट्रेड, जो ट्रेड को हेल्प करती हैं. दोज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट. आपका सामान ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचेगा. आपको सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यू नीड फाइनेंस. फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच बैंक. आपके पास बहुत सारा सामान स्पेयर में पड़ा हुआ है, स्टॉक कलेक्ट हो गया है, यू नीड टू कीप दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन फेयर हाउस. आपका सामान डैमेज ना हो जाए, फॉर दैट यू नीड टू गेट इट इंश्योर्ड. ओके, एंड टू मेक द कस्टमर्स अवेयर यू नीड टू एडवर्टाइज अबाउट योर प्रोडक्ट. And that comes in aids to trade. Okay, both trade as well as aid to trades bridges the gap between the producer and the consumer. Right here in front of you, the producer manufacturing AC, fridge, TV or anything, वो सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? थ्रू कॉमर्स. राइट, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज ट्रेड. और उसमें चीज़ों में जो प्रोसेस लगता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, वेयर हाउस हो, वो सब ट्रेड का पार्ट हो गया. कॉमर्स रिप्रेजेंट द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज. मतलब क्या होता है? वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड गिविंग सर्विसेज. राइट, सो इट कवर बोथ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. सर्विसेज कैसे दे रहे हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, सामान को वेयर हाउस में रखना, स्टोर करके रखना, दैट इज कॉमर्स. कॉमर्शियल एक्टिविटीज ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. व्हाट कॉमर्स एक्टिविटी? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. कॉमर्शियल एक्टिविटी फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. प्रोड्यूसर के पास से सामान को लाना, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को. दैट कम्स इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. कॉमर्स क्रिएट प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स. टाइम बचता है कस्टमर्स का और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेविंग होती है. ठीक है, लेट्स सपोज कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद राजस्थान में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है? प्लेस यूटिलिटी कवर नहीं हो रही है. फॉर दैट पर्टिकुलर स्टफ ऑफ क्लोथ वी नीड टू गो टू राजस्थान. राइट, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हैं. यू कैन अप्रोच इट ईजीली. दैट इज कॉमर्स, दैट इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स. सो व्हाट आर द फंक्शन एंड रोल ऑफ कॉमर्स? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू learn in this. Let's discuss the function and role of commerce. Commerce means buying and total of those activities which are concerned with transfer of good and services to the customer. Customer तक सामान पहुँचाने के सिस्टम को कॉमर्स कहते हैं. इट इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ओके, सो कॉमर्स प्ले द रोल ऑफ रिमूविंग हिंड्रेंसेस. स्मूथ फ्लो हो जाए गुड्स का प्रोड्यूसर से, जो बना रहा है उसको कस्टमर तक, वो फैसिलिटेट करता है कॉमर्स. वो लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स. ये हिंड्रेंसेस हो सकते हैं पर्सन से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, रिस्क, टाइम, फिनेंस, इंफॉर्मेशन. कैसे? पर्सन अवेलेबल नहीं है जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचाए. प्लेस से आप अननोन हैं, आप सामान ला रहे हो, वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपका पैसा वेस्ट हो गया, या इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये सब चीज़ों को कॉमर्स लुक आफ्टर करता है. इट रिमूव ऑल द हिंड्रेंसेस. ट्रेडर्स आप तक सामान पहुंचाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन प्लेस कवर करता है. इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है. वेयर हाउस और स्टोरेज में हम स्टोर करके रखते हैं, उससे टाइम सेव होता है. हम एक्स्ट्रा बनाकर प्रोडक्ट रख सकते हैं. बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराता है. एडवर्टाइजमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है customers को. So what are the function of commerce? Let's discuss it one by one. First is remove the hindrance of person. See, ऐसा नहीं है कि जो टीवी सैमसंग का टीवी है तो वो उसकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री कहाँ पर होगी? उसकी फैक्ट्री लेट्स सपोज न्यू दिल्ली में है, आप रहते मोदी नगर में हो, तो आपको दिल्ली जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और आपको सैमसंग का टीवी ही खरीदना है. Producer is not able to have direct contact with the consumer to sell its products.
ठीक है। अब जो टीवी का प्रोड्यूसर है, सैमसंग की फैक्ट्री है जहाँ पर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, लेट्स सपोज, आप कैसे जाओगे वहाँ तक, राइट? यू आर नॉट एबल टू हैव, एंड आप नहीं जाओगे। इनफैक्ट जो प्रोड्यूसर हैं, जो सैमसंग का टीवी प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको नहीं जानते कि आपको नीड है। वो ऐसे कितने लोगों को सैमसंग की रिक्वायरमेंट है, सैमसंग के टीवी की रिक्वायरमेंट है, बट वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। दे डोंट नो, बना रहे हैं इसलिए कि बिके, बट अप्रोच नहीं कर सकते, राइट? सो ट्रेडर्स हैव एमर्ज्ड टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। के बीच में ट्रेडर, व्यापारी आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं। वो ट्रेडर्स कौन होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर। अभी से ढंग से समझो एक बार, आगे भी पढ़ोगे इसे अभी कैसे। सैमसंग टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है न्यू दिल्ली में। जो बॉस है वो सैमसंग के टीवी बनाते हैं। उन्हें नहीं पता कि आपको सैमसंग के टीवी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। दे कैन नॉट अप्रोच यू डायरेक्टली। सो हु कम्स इन बिटवीन? इट्स द ट्रेडर्स, होलसेलर। कहते हैं ना, आपकी मदर से, फादर से आपने सुना होगा कि होलसेल की शॉप्स हैं, वो बल्क क्वांटिटी लेकर आते हैं। वो 500 नहीं 5000 टीवी एक साथ लेकर आते हैं। फिर वो लेकर आ गए, जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं ना, शोरूम्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, व्हाट दे पीपल डू, दे पीपल अप्रोच दी होलसेलर्स। वो उनसे 500 टीवी कलेक्ट करते हैं। ऐसे कितने सारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं। होलसेलर तो बल्क में लेकर आ गए हैं। रिटेलर्स, सारे स्टोर्स जो सैमसंग का टीवी रखते हैं, वो कोई 50 अपने अपने बजट के हिसाब से, कोई 500, कोई 50, कोई 100 टीवी अपनी अपनी शॉप्स में ले आए। प्रोड्यूसर आप यहाँ पर मोदी नगर में, आपको पता है 2 शोरूम हैं टीवी के। आप पहुँच जाओगे, पूछोगे भाई सैमसंग का टीवी है कि हाँ, हमारे पास 50 टीवी हैं सैमसंग के, अलग अलग मॉडल्स के, आप उनमें से देख लो। ये अपने बजट के अकॉर्डिंग 50 टीवी होलसेलर से ले आए थे। होलसेलर एक साथ 5000 लेकर आए हैं। वो बल्क में लाता है। रिटेलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाता है, अपने बजट के हिसाब से लाता है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कैसे अप्रोच करें? सो द होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट्स ऑपरेट टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इन ट्रेड। सेकेंड, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। Goods may be produced at a place where advantages of location other than the market are available. ऐसी जगह गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं लोकेशन को देखकर और मार्केट्स को देखकर। मीन्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड इज रिमूव्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जहाँ पर इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी है सैमसंग की, जैसे सपोज न्यू दिल्ली में है ये, तो आसपास के मार्केट्स ऐसे देखा जाता है, वो भी आसपास मार्केट ऐसे अप्रोच करते हैं कि जहाँ पर लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। भाई दिल्ली के नियर बाय एरियाज़ के लोग, दिल्ली में होता है, लेट्स सपोज लखनऊ में होता है, कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, जिन प्लेसेस पे होती है, वो अप्रोच इजीली होलसेलर उन्हें अप्रोच कर सकें थ्रू द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो ट्रक भेजें, चाहे वो मिनी ट्रक भेजें, कुछ भी भेजें, ठीक है, वो सामान अपना मंगा सकें, अप्रोचेबल, इजी अप्रोचेबल हो। इससे प्लेस का हिंड्रेंस रिमूव होता है। जो बैरियर है डिस्टेंस का, जहाँ पर प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड इज़ रिमूव्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू होलसेलर सामान मंगा सकते हैं, क्योंकि वो होलसेलर उनके नियर बाय कहीं मार्केट्स में होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। व्हाट कम्स इन दिस? गुड्स इन मॉडर्न टाइम आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड and as such they are to be stored till the demand for the same comes up. See, आज के टाइम पे क्या होता है, मार्केट में देखा जाता है इस पेन की डिमांड है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा करके रखते हैं क्योंकि बहुत डिमांड में है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। देन द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इज परफॉर्म बाय वेयर हाउसेज। कहाँ पर स्टोर किया जाता है? गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में। स्टोरेज रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अगर जैसे ही कस्टमर की डिमांड आई कि होलसेलर ने कहा भाई 5000 और ये पेन चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन द प्रोड्यूसर गो टू द वेयर हाउस और वहाँ से वो 500 5000 जितनी भी रिक्वायरमेंट है निकाल के दे देंगे, कि वो ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं। तो जो वेयर हाउसेज हैं उससे हमारा टाइम सेव हो रहा है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको तुरंत दोबारा बनाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। आप क्या करोगे? आप डेली के 500 टीवीज़ निकालते हो, मार्केट में सैमसंग की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड हो गई और कि 500 की जगह अब डिमांड आने लगी 700 टीवी की, तो कभी आप
200 एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करके गोडाउन्स में रख लेते हो, ऑल ऑफ अ सडन डिमांड रेज हुई तो तुरंत मार्केट में निकाल दिया। इससे हमारा क्या सेव हुआ? टाइम। रिस्क, नंबर ऑफ रिस्क आर देयर इन बिजनेस। जब आप बिजनेस करने लगते हो तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज से कवर होते हैं। लेट्स सपोज आपका सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपका डैमेज हो गया गुड्स का, गुड्स लॉस हो गया इन कंसिडरेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। आप उन्हें थोड़ा सा प्रीमियम देते हो और उससे आपका पूरा का पूरा गुड कवर हो जाता है थ्रू दी इंश्योरेंस कंपनीज। आपकी भी हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, आप एवरी ईयर प्रीमियम देते हो और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर टू हेल्प अस आउट, बिकॉज एवरी ईयर वी गिव सम प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनीज। इसी तरह गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, वो रिस्क कवर करता है। फिनेंस, सैमसंग के जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास बहुत पैसा है, बट कभी ऐसा हुआ कि उन्हें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उनका बजट ख़राब हो गया किसी वजह से, तो बैंक्स आर देयर टू प्रोवाइड देम द कैपिटल। बोथ बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर में फेस द प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस। आपको भी होती है प्रॉब्लम कई बार, तो आप क्या कराते हो? EMIs में कन्वर्ट करा लो, तो ये भी तो बैंक ही आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सिस्टम। दिस इज सॉल्व्ड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिजनेसमैन को फंड चाहिए होता है अपनी कैपिटल्स रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, बैंक उन्हें लोन देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जिससे वो अपनी कैपिटल को पूरा कर सकते हैं। कस्टमर्स को चाहिए होता है टीवी परचेज, रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए लोन, तो बैंक्स आर देयर टू ऑफर देम कंज्यूमर लोन्स ऑल्सो, राइट। अब आप देखते हो आप कुछ परचेज करते हो तो EMIs में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आपको बैंक ये फैसिलिटी देता है ताकि आप इजीली कुछ भी चीज़ खरीद सको। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पहले क्या था? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती थी, आज एडवर्टाइजमेंट इतना कर देते हैं प्रोडक्ट का तो कस्टमर को पहले ही पता होता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द यूज एंड disadvantages of a particular product. Out of number of pen, I need to purchase this pen. It's because advertisement इस पेन की कंपनी ने इतना कर दिया, get to know कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं. I just go to the market, grab this pen and come back to the house. Right? So this is about the function and role of commerce. Tomorrow we will discuss the type of commercial activities. जो आज मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है, कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, that is trade. आज we are done with commerce today. Tomorrow we will discuss trade and the part of trade, that is home trade and foreign trade. Okay? So have a good learning. That's all for today. Thank you.